गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे पॉलीमर्स चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एचपी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे क्योंकि चैप्टर के बारे में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसको सॉल्व करने से आप तक पहुंच जाएगी। उसके बाद डिफरेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उनके ऊपर हम जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच इज नॉट अ पॉलीमर। तो क्लोरोफिल जो है ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन पॉलीमर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक पॉलीमर। तो स्टार्च, सिल्क और प्रोटीन नेचुरल पॉलीमर्स हैं, सिंथेटिक है टेरलिन, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोपॉलीमर। कोपॉलीमर होता है जो दो डिफरेंट मोनोमर्स से मिलकर बना होता है। सो ब्यूना एस, ब्यूटाडाइन और स्टायरीन से मिलकर बना है, इट्स अ कोपॉलीमर। द एलिमेंट यूज्ड फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज सल्फर। रबर के बीच में सल्फर के क्रॉस लिंक्स बनते हैं और ऐसी रबर को हम वल्कनाइज्ड रबर कहते हैं। The monomer unit of PVC, polyvinyl chloride, is vinyl chloride. Which is not true about polymers. तो polymers जो है इनका molecular mass high होता है, तो यहाँ लिखा है low, तो it's not true. Tetrafluoroethylene is a monomer of Teflon. Example of semi-synthetic polymer is cellulose nitrate. Monomer of Teflon is tetrafluoroethylene. In the following thermosetting polymer is bakelite. बाकी सब thermoplastics हैं. The polymer which is used in the manufacture of unbreakable crockery is melamine formaldehyde. Neoprene is a polymer of chloroprene. Which of the following is a naturally occurring polymer? Starch, glucose का polymer होता है. Bakelite is a polymer of phenol formaldehyde. Chloroprene is the repeating unit of neoprene. Which is a condensation polymer? So bakelite is a condensation polymer. Plastic is a synthetic polymer. Cellulose is a natural polymer. Buna S is butadiene और styrene से ऐड करके बनता है एडिशन पॉलीमर. Bakelite, rayon is semi-synthetic polymer. Polystyrene is addition polymer and thermoplastic polymer. So option C is the correct answer, both A and B. Bakelite is thermosetting polymer. Monomer of nylon 6 is caprolactam, which is not a condensation polymer. So polytetrafluoroethylene is a addition polymer. बाकी तीनों condensation है. Natural rubber is a polymer of isoprene, 2-methyl-buta-1,3-diene. Monomer of Teflon is tetrafluoroethene. Nylon 6,6 is a condensation polymer of hexamethylene diamine and adipic acid. Choose the correct statement about nylon 2, nylon 6. It's a polyamide copolymer, correct. Its monomer units are glycine and aminocaproic acid, correct. It's biodegradable, correct. So all of the above. PHBV, polyhydroxybutyrate polyhydroxyvalerate, is used for specialty packing, orthopedic devices and controlled release of drugs. Dacron is a condensation polymer of terephthalic acid and
ethylene glycol. Which of the following is a synthetic polymer? PVC. Which one of the following is used to make non-stick cookware? It's polytetrafluoroethylene. Natural rubber has all cis configuration. In Buna-S, the symbol Bu stands for butadiene. Orlon is a polymer of acrylonitrile. Monomer of cellulose polymer is beta-D-glucose. Which of the following is not an example of homopolymer? So, bakelite is a copolymer. To make PVC a flexible plastic, the additive used is called plasticizer. Which of the following is not an example of addition polymer? So, terylene is a condensation polymer, not an example of addition polymer. Which of the following is a step growth polymer? So, nylon is, all condensation polymers are step growth polymers. Which of the following is an example of homopolymer? So, polythene. Which of the following is a polymer containing nitrogen? Is nylon, hexamethylene diamine and adipic acid. So, polyacrylate contains the linkages of esters. The chemical name of isoprene is 2-methyl-1,3-butadiene. Which of the following is a thermoplastic? Answer is nylon, terylene, polyethylene, all. So option D is the correct answer. Which is true for elastomers? They possess elasticity, they possess weak intermolecular force of attraction, and vulcanized rubber is an example of elastomers. All are true. So option D is the correct answer. Vulcanized rubber resists wear and tear due to friction. Is the correct answer. Another type of question जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो है गिव डिफरेंसेस बिटवीन. तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके बारे में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं उसमें है डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. तो थर्मोप्लास्टिक्स आर प्लास्टिक्स जिनको कि हम आसानी से सॉफ्टन कर लेते हैं और हीट करके और कूल करके हार्डन कर लेते हैं. तो इस तरह से इनको बार बार यूज़ किया जा सकता है. थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिनको हीट किया तो परमानेंट चेंज हो जाती है, इनको बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं. थर्मोप्लास्टिक्स में कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है चेन्स के बीच में. थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग होती है चेन्स के बीच में. एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, और थर्मोसेटिंग की एग्जाम्पल बेकेलाइट और मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स. इसी तरह डिफरेंस बिटवीन नायलॉन 6,6 एंड नायलॉन 6. तो नायलॉन 6,6 जो है दो मोनोमर्स हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड के कंबाइन करने से बनता है, तो ये कोपॉलीमर है. जबकि नायलॉन 6 में एक ही मोनोमेरिक यूनिट है जिसको हम कैप्रोलैक्टम या रबर एंड वल्कनाइज्ड रबर. नेचुरल रबर जो है इट स्टिकी होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, इलास्टिसिटी कम होती है, बहुत नैरो रेंज टेम्परेचर पे इसको यूज़ किया जा सकता है. वियर एंड टीयर भी की रेजिस्टेंस भी बहुत लो होती है, आसानी से वियर एंड टीयर हो जाता है और सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है जैसे कि ईथर, CCl4, पेट्रोल. जबकि वल्कनाइज्ड रबर जो है बेटर क्वालिटीज़ के साथ आता है. इट इज़ हार्ड and non-sticky, has high tensile strength, high elasticity, can be used over a wider range of temperature, -40 to 100 degrees centigrade, has high wear and tear resistance and is insoluble in all the common solvents. Then we also have
we may be asked difference between addition and condensation polymers. तो addition polymers बनते हैं by addition of one monomer into another, और जो monomers है उसमें डबल बॉन्ड होता है, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर्स में जो मोनोमर्स हैं उनमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है जो दूसरे मोनोमर के दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ कंबाइन कर जाता है और इस तरह से ये ज्वाइन करता है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं. और एडिशन जो पॉलीमर्स होते हैं they have usually same unit which is repeated again and again, जबकि कंडेंसेशन में the structural unit different होती है. So in addition polymers, different monomers add to form a polymer having same molecular formula of repeating structural unit which are same as that of starting material. But condensation polymers में large number of monomers combine with the loss of simple molecule to form polymer having molecular formula of repeated structural units different than that of the starting monomer. इसमें ज्वाइन करते वक्त कुछ भी लूज नहीं करते हैं, कोई मॉलिक्यूल लूज नहीं होता है, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट जब ये ज्वाइन करते हैं. दे इन्वॉल्व वन मोनोमर, दे जनरली इन्वॉल्व टू मोनोमर्स. मोनोमर्स आर जनरली unsaturated compounds having double or triple bond. Monomers generally contain two functional groups. Example of addition polymers are polythene, polypropylene. Examples of condensation polymers are nylon 6,6, terylene, bakelite, etc. Then एक क्वेश्चन जो डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि वो आपको एक पॉलीमर देंगे और बोलेंगे कि आप उसका मोनोमर का नाम और स्ट्रक्चर बताएं. तो अगर ब्यूना एस पूछा है तो ब्यू वर्ड है ब्यूटाडाइन और एस है फॉर स्टाइरीन जो कि Na के प्रेजेंस में होता है, तो ये उसके मोनोमर्स है. ब्यूना एन में ब्यूटाडाइन के साथ एक्रेलोनाइट्राइल है. डेक्रॉन या टेरेलिन के केस में टेरीथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल ये होते हैं मोनोमर्स. नियोप्रीन में 2-chloro-buta-1,3-डाइन होता है. ग्लिप्टल में थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल मोनोमर्स होते हैं. बेकेलाइट में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल दे एक्ट एज मोनोमर्स. नायलॉन 6 में ये होता है कैप्रोलैक्टम हेक्सानोइक एसिड, एप्सिलॉन अमाइनो हेक्सानोइक एसिड. पॉलीप्रोपीन में प्रोपीन होती है मोनोमर. टेफ्लॉन में टेट्राफ्लोरोईथीन होती है. रबर में 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइन या आइसोप्रीन होता है मोनोमर. टेरेलीन हमने कर लिया है. नाइलॉन 6,6 में हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड दोनों में 6 कार्बन है, वो होते हैं मोनोमेरिक यूनिट्स. देन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो आपको पॉलीमर बोलेंगे और बोलेंगे कि उसकी प्रेपरेशन लिखें और उसकी यूजेस बताएं. जैसे नाइलॉन 6,6 इज फॉर्म्ड जब हम हेक्सामेथिलीन डायमीन को एडिपिक एसिड दैट इज a dicarboxylic acid having 6 कार्बन एटम, तो ये कंबाइन करेंगे, वाटर निकल जाएगा और ये ज्वाइन कर जाएगा टू फॉर्म NHCH2 6 times NHCO CH2 4 times and COO group being repeated n times. ये बन गया नाइलॉन 6,6. इसी तरह ब्यूना एस में हम ब्यूटा 1,3-डाइन लेंगे, CH2 CH CH CH2. स्टाइरीन लेंगे विच इज बेंजीन विद CH डबल बॉन्ड CH2. इसको सोडियम की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये जॉइन हो जाता है, होमोलिटिक फिशन होती है, तो वी गेट CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2. यहाँ से कंबाइन कर गया, यहाँ पे बेंजीन रिंग है एंड दिस इज n टाइम्स, दिस इज ब्यूना S. इसी तरह पॉलीविनाइल क्लोराइड जब हम
विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो ये बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। देन इस चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल इलास्टोमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकेस्ट होती है। फाइबर्स वो पॉलीमर्स हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और ये फाइबर के फॉर्म में होते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स वो होते हैं जिनको हीट करके सॉफ्ट किया जा सकता है और कूल करके हार्ड किया जा सकता है और इनको रीमोल्ड करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर विच गेट a permanent disfigurement on heating and they cannot be used again and again. Vulcanization is process of making natural rubber hard and stiff by heating it with sulfur. Sulfur forms cross links between the chain and makes rubber hard. तो जो रबर बनती है उसको वल्कनाइज्ड रबर कहते हैं और प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स वो होते हैं जो कि डीकम्पोज कर जाते हैं खुद ब खुद और ह्यूमंस में ज़्यादा जो है हार्म नहीं पहुंचाते हैं। स्टिचेस के लिए जो बनते हैं पॉलीमर्स वो ह्यूमन बॉडी में ही डिसॉल्व कर जाते हैं, तो दे आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। देन कई बार आपको पूछा जा सकता है फुल फॉर्म ऑफ दीज पॉलीमर्स। सो PHB इज पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। PJ इज पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। PLA इज पॉलीलैक्टिक एसिड। PCl इज पॉली एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। PVC इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। PAN इज पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने निकाले हैं, प्रैक्टिस देम। That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.